ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐಎಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗ ಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿರು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿವಸ ಆತನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರಾಗ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣುವಾಗ ಇಹ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣುವಾಗ ಇಹ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವ ಪಡೆಯುವಾಗ ಇಹ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರಾಧಿಸ ಎನ್ ಜೀವವು ಆರಾಧಿಸ, ಆರಾಧಿಸ, ಆರಾಧಿಸ ಎನ್ ಜೀವವು ಆರಾಧಿಸ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಇಡೀ ಲೋಕವು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಮಹಾರೋಗದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮೊರೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ಕರ್ತನೆ ಮಾನವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಗಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಚು, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ.
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲ್ಲಕೊಲ್ಲಲಾಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು ಕರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸಸ್, ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಡಿತರಾಗಿದೆಯಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನೇ ಅವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಂಘದಿಂದ ಪಾಸ್ಟರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಉಗ್ರಾಣಿಕರನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವು ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 4 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The Paul's letter to the Church of Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿರುವವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿರಿ, ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಜೀವವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ. ದೇವರು ಓದಿದಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗವು, ಈ ಒಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. गए संडे को हमने देखा कि पैंडेमिक और आपत्तियां, ये सारी चीजें जो है क्यों आती है, क्यों है करके हमने प्रश्न कर कर इनको बाइबल की ओर से हमने देखा है. बाइबल में से हमने ये देखा कि परमेश्वर जो है कुछ इस तरह की बीमारियों को, विपत्तियों को लोगों के बीच में इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने लेकर आए. ये मनुष्य के पाप की वजह से, मनुष्य को दंड देने के लिए जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो कई बार इन विपत्तियों को उन्होंने लेकर आया. दूसरा हमने ये देखा कि कई व्यक्तिगत लोगों की विश्वासों को परखने के लिए कई बार आपत्ति को या फिर इस तरह की बीमारियों को उनके जीवन में लाया है. और तीसरा हम ये देखे हैं कि इट्स लाइक ए वार्निंग टू रिटर्न टू गॉड.
ये इस तरह की परिस्थितियां जब आती हैं हमारे जीवनों के अंदर, परमेश्वर ये चाहता है कि हम मनुष्य उनकी ओर मुड़े। लेकिन इन सारे विपत्तियों के बीच, इस महामारी के बीच, परमेश्वर जो है उनके ऊपर विश्वास करने वाले धर्मी लोगों को बचाता है। और जो धर्मी होकर भी मरते हैं, परमेश्वर के सन्निधान में रहते हैं करके हमने देखा है। लेकिन जो भी जीवित है, परमेश्वर एक मकसद रखा है। वो मकसद क्या है कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को जिए। दूसरा मकसद हमने ये देखा कि हम दूसरों के लिए अपने जीवन को जिए। बट इन ऑल दिस थिंग्स, इन सारी बातों के अंदर कहीं ना कहीं जो है हमारे बीच में कई और प्रश्न होंगे। लेकिन इन प्रश्नों को उत्तर देते समय मैं ये कहूँगा कि आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपे और उसके लिए जिए। ये हमने पिछले हफ्ते संदेश में सुना है। अगर हम उसी दिनों में देखते जाते हैं, पैंडेमिक, ये बीमारी जो है और बढ़ते ही जा रही है। इट हैज़ अफेक्टेड द होल ह्यूमैनिटी इन अ वेरी बिग वे। बहुत ही प्रभावशाली से ये बीमारी जो है लोगों के अंदर हल्ला मचाई हुई है करके हम देख सकते हैं। और इसके अलावा ये पैंडेमिक जो है पिछले 1 साल से कई चीज़ों को मनुष्य के जीवन में लेकर आई है, चैलेंजेस को लेकर आई है। उदाहरण के लिए कई कंपनियां जो है बंद हो चुकी हैं। देशों की, लोगों की, कंपनियों की, सभी लोगों की आर्थिक परिस्थिति जो है नीचे उतरते जा रही है। लोगों को काम नहीं है, देयर इज नो जॉब, सही तरह से काम नहीं है, कई लोग काम खो चुके हैं। और अगर हम इस परिस्थिति में देखते जाएंगे, अभी जो है ये सेकेंड कोविड जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ चुका है। कई लोग जो है, हम इस तरह से सुनते हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है संपूर्णता से कोलैप्स हो चुके हैं इंडिया में, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। डेथ्स, मृत्यु जो है बढ़ते जा रही है। क्रेमेटोरियम के अंदर लाशें जो है कई तरह से लाइन में लगी हुई है। लोग आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। ये सारी बातें व्हाट्सएप में, न्यूज़ में, यहाँ वहाँ सुनकर हम कई बार जो है हमारे मन में पैनिक हो जाते हैं। वी गेट पैनिक, और कई तरह के डर हमारे मन में आ जाती हैं। सो व्हाट इज इट डूइंग? ये पैंडेमिक अभी क्या कर रहे हैं पता है? आज मेरे और तुम्हारे दिमागों के ऊपर असर कर रही है। द पैंडेमिक इज क्रिएटिंग मेंटल चैलेंजेस इन आवर लाइफ। हमारे दिमागों के ऊपर ये असर कर रही है। एज अ रिजल्ट, मैं कुछ सर्वे को पढ़ रहा था कि सर्वे के अंदर देखते समय इन दिनों में बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन के अंदर स्लीपलेसनेस, यानी कि उनको नींद नहीं हो पाती है ठीक तरह से। इरिटेशन लेवल उनका अंदर बढ़ गया है। भविष्य को लेकर बहुत सारे चिंताएं हैं। अपने बच्चों के विषय में हो, मैरिजेस जिनके शादियां पोस्टपोन हो चुकी हैं, और कई चीजें हैं जो उनके जीवन में उनको माइंड के ऊपर असर कर रही है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। Many people are into depression. So in other words, in simple words, we can say the pandemic is affecting our mind. Pandemic की स्थिति जो है आज हमारे दिमाग को, यानी कि माइंड को असर कर रही है। और अगर हम देखते हैं, माइंड ही जो है हमारे देह को कंट्रोल करती है, हमारे सेंट्रल पार्ट है हमारे अंग की, बॉडी की। अगर हम माइंड के बारे में सुनेंगे, हम ये कह सकते हैं माइंड हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। ये माइंड, दिमाग के अंदर जो है 3 काम करते हैं। पहला अगर हम देखते हैं, इट इज़ अ थिंकिंग, यानी कि सोचने के लिए। जो भी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारी बातों को सोचने के लिए ये माइंड काम करता है, रीजन करता है। सो सही है, उसे हम स्वीकार करें। दूसरा, ये माइंड जो है इट फंक्शन ऑफ द फीलिंग, हमारे अंदर जो है फीलिंग एक लेकर आती है। स्पर्श करने से वो सब फीलिंग के बारे में नहीं, बल्कि चीज़ों को देखने के बाद हमारे मन के अंदर जो चित्र पैदा होती है वो फीलिंग हम कहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि और एक फंक्शन करती है। क्या है? इट क्रिएट्स अ डिजायर, यानी हमारे अंदर जो है इच्छा है या फिर आगे क्या करना है क्या नहीं, इन बातों को उत्पन्न करती है। सो इसीलिए एक व्यक्ति इस तरह से कहते हैं, माइंड इज लाइक ए कैनवस। हमारा दिमाग जो है एक कैनवस की तरह है। इसमें जो कुछ भी आप पेंट करोगे, चित्र बनाओगे, वही चित्र जो है वहां पर बनेगा। इट विल बिकम एज अ पिक्चर। Whatever you will paint, it will become as a picture. So mind is considered as a very powerful organ या फिर powerful
among all the organs in our body. So mind dictates our body. मन दिमाग जो है हमारे शरीर को चलाती है, कंट्रोल कर कर चलाती है। और इसीलिए आज इस पैंडेमिक की वजह से अगर ये माइंड के ऊपर ही असर हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर के ऊपर असर होने लगती है, पूरे बॉडी के ऊपर असर होने लगती है। और इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंट्रोल दिस माइंड। ये दिमाग को, ये मन को जो है मुझे और आपको जो है कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करें, कैसे करें? व्हाट वी हैव टू डू इज we have to focus our mind on things which we desire, not on things which we fear. Please listen to this statement. We have to focus our mind on things we desire and not things we fear. मतलब हम अपने दिमाग को ऐसे चीजों के ऊपर जो है लगाना है जो हम चाहते हैं, ना कि जो चीजें हमारे लिए डर उत्पन्न करती है उन चीजों को हम ना सोचे, उन चीजों को हमारे दिमागों के अंदर ना लेकर आए। ये वचन जो है, ये पंक्ति जो है ब्रायन ट्रेसी उन्होंने कहा है। सो इसीलिए आज सबसे पहली बात, अगर हमारे पैंडेमिक जो चैलेंजेस हमारे जीवन में लाई है माइंड के चैलेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर हमें जय पाना है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट रीफोकस योर माइंड। तुम अपने दिमाग को वापस से रीफोकस करो। फोकसिंग हम सभी लोग जानते हैं, आज हमारे सभी के पास मोबाइल्स है। मोबाइल से हम फोकस करते हैं ताकि अच्छी तरह से चित्र आए, फोटो आए, सेल्फी है, ये हो, सब हम लेते हैं, फोकस करके लेते हैं, हमारे ऊपर फोकस करके। सो व्हाट यू डू टू इज नाउ टुडे रीफोकस करना है, हमारे माइंड को लेकर के रीफोकस करना है। ऑन व्हाट थिंग्स वी हैव टू रीफोकस, किन बातों के ऊपर फोकस करना है, रीफोकस करना है? डर से हटाकर डिजायर के ऊपर करना है। हमारे मन में जो डर पैदा करती है सारी चीजें, न्यूज़ हो, नेगेटिव चीजें है, सारी बातें जो हमारे मन में डर पैदा करती है ना, उससे हटाकर हम जो चाहते हैं उसके ऊपर हमें लेकर जाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। वी हैव टू रीफोकस फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स टू द पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव चीजों को हटाकर पॉजिटिव के ऊपर लेकर आना है। डिप्रेशन यानी कि निराशाएं हमारे जीवन में लाई है ना, निराशाओं से निकल करके इंस्पिरेशन जो हमें लाती है उसकी ओर हमारे दिमाग को लेकर जाना है। ग्लूमी टू हैप्पी यानी कि जो हमारे मन में जो है हमेशा हम सैड रहने का कोशिश करते हैं, उदास हो जाते हैं, उदास के बदले जो चीजें हमें खुश करती है उन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। और इसीलिए आज इस फोकस करने के लिए हम सभी के लिए एक ही बात है। वचन आइजाया उसका 26वां अध्याय 3रा वचन ये कहता है, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3, इट सेज those whose minds are focused on him he will give them the peace। यानी कि जिनका दिमाग उस परमेश्वर के ऊपर फोकस्ड है उनको परमेश्वर वो शांति देता है या फिर स्थिर करता है। सो रीफोकस योर माइंड फ्रॉम ऑल दिस थिंग टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के ऊपर, मसीह के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग की बातों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर आइए हम अपने मनों को जो है फेर ले। कोलोसियोस का 3रा अध्याय 2रा वचन कहता है, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबाव नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। यानी कि सांसारिक बातों के ऊपर जो हमें दुख, जो पीड़ाएं, जो डर को उत्पन्न करते हैं उनके ऊपर नहीं, बल्कि आइए हम स्वर्ग की बातों के ऊपर अपने ध्यान को रखें। When we do this, जब हम ये करते हैं क्या होगा पता है? Whatever we are painting in our mind, हमारे मन में जो है ये सारी बातों को हम पेंट करने लगते हैं और वो चित्र वैसे ही पैदा होने लगता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जुने नियम में कई बार हमने इस कहानी को सुने हैं संडे स्कूल से लेकर। मूसा जो है इस्राएलियों को लेकर चलते समय कानान देश पर जाने वाले ही थे, उसके पहले मूसा ने 12 जासूसों को चुना और उसमें जो है उनको चुनकर ये कहा कि तुम कानान देश को देखकर रिपोर्ट लेकर आओ, कैसा है देश, हम उसके ऊपर कैसे जय पाएंगे, कैसे हम जाकर बसेंगे। जब वो लोग गए 10 लोगों ने जो है देखकर रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। क्या रिपोर्ट लेकर आए? ये 10 लोगों ने कहने लगे, मूसा हम लोग तो उस देश में जा ही नहीं सकते हैं, सच में ये देश जो है बहुत ही बड़ा देश है, दूध और मध से बहने वाली देश है, वहाँ के फल बड़े बड़े हैं, ये सब कुछ अच्छा है और वहाँ के लोग जो है बहुत ही ऊंचे हैं, दे आर वेरी टॉल, बड़े बड़े जायंट्स के जैसे हैं, उनको हराना हमारे लिए असंभव की बात है, हम उनके सामने टिड्डियों के समान, लाइक ग्रास ओपर वी आर देयर। तो इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। उसी समय जो है गिनती उसका 13वां अध्याय 30वां वचन कहता है, जोशुआ खड़े होकर उन्होंने कहा तुम चुप हो जाओ,
हम जाएंगे और इस देश के ऊपर हम बसेंगे, इस देश को हम अपना बनाएंगे जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है कहकर। सो जोशुआ और कैलेब दोनों ने मिलकर ये कहा कि मूसा हम जाएंगे, हम जय पाएंगे, हम करेंगे। वहां की परिस्थितियों को देखकर वो डरे नहीं, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं किए, बल्कि उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आए। अपने दिमाग के अंदर ये चित्र बना लिया कि गॉड जो हमें प्रॉमिस किया है वो हमें देगा। इसलिए उन बातों के ऊपर उन्होंने मन लगाकर, उस परमेश्वर के ऊपर मन लगाकर, उस परमेश्वर के ऊपर दिमाग लगाकर अपने दिमागों को जो है उस परमेश्वर से भर लिए, ना कि उस खनान देश में रहने वाली चीजों से। आज मुझे और तुम्हें जो है जरूरी है कि आज इस सारी परिस्थितियों को देखते समय पर मेरे माइंड के अंदर आने वाले ये सारे गलत विचार, नेगेटिव विचार, इन सारी बातों को नकारते हुए हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर, उन वचन के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर हमें मनन करते हुए आगे बढ़ना है। When we do this, जब हम ऐसा करेंगे, then God will definitely give us a positivity। परमेश्वर जो है हमें जय देगा। आज एक चैलेंज है सबके साथ में, तो इस चैलेंज को ये करना है तो रीफोकस करना है हमारे माइंड को। एक गवाही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रेवरेंड केनेथ हैगिन नाम के परमेश्वर के एक सेवक है, रेवरेंड केनेथ हैगिन। ये जो है अपने 80 साल के उम्र में भी बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग थे। वे प्रचार जब करते थे, दौड़कर भागकर प्रचार किया करते, बहुत ही एक्टिव थे और उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, एक एक डिटेल, समय, जगह, लोग, नाम, सब कुछ वो बता दिया करते थे। तो ऐसे समय पर जो है वो गवाही देते हैं। मतलब इतना अद्भुत मेमोरी पावर कैसे मिला पता है उनको? ये कहने लगे कि जब वो 50 साल के थे उस समय पर वो एक मेडिकल जर्नल के अंदर एक आर्टिकल पढ़े। क्या आर्टिकल था? कि हमारे 50 साल होते होते हमारे ब्रेन सेल्स जो है मरने लगते हैं, और ब्रेन सेल्स जब मरने लगते हैं हम कुछ चीजें भूलने लगते हैं, भूलने की बीमारी आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये रेवरेंड केनेथ हैगिन भूलने लगे कुछ बातों को। जब भूलने लगे तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो हो रहा है, तो इसलिए तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वे प्रार्थना करने लगे, लॉर्ड व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुमने जो आर्टिकल पढ़ा उसी के ऊपर विश्वास किया और इसीलिए तुम भूल रहे हो। और ये बात जानने के बाद तुरंत रेवरेंड हैगिन जो है वापस से उठकर अपने पश्चाताप किया और ये कन्फेस किया। क्या कन्फेस किया? पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 16 वचन कहता है, ये कहता है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे अंदर जो है मसीह का दिमाग है, मसीह का मन है। तो ये दिमाग क्या करता है? इट विल नॉट फॉरगेट, वो आसानी से नहीं भूलता है। मसीह का मन, मसीह का दिमाग जब हमारे अंदर है तो हम कैसे भूलेंगे? सी दैट पॉजिटिविटी हाउ इट इज हैपनिंग। नेगेटिविटी, ये मेडिकल जर्नल, ये सारी चीजें नेगेटिविटी को लेकर आ रही थी, लेकिन परमेश्वर जो है इनसे बातें करके उनको पॉजिटिविटी लेकर आए। और 80 साल के उम्र तक वो कहते हैं तब तक मुझे जो है मेमोरी पावर वापस से आ गया और मेमोरी पावर में कभी कम नहीं हुआ। सो मेरे प्रिय लोगों, आज मैं और आप जो है अपने जीवन में जीते समय इस पैंडेमिक के ऊपर से आने वाले हमारे दिमागों के ऊपर चैलेंज ना लेते हुए हमारे दिमाग को, हमारे मन को फोकस करें। किधर? लेट अस फोकस ऑन दिस गॉड, इस परमेश्वर के ऊपर, मसीह के ऊपर। पॉजिटिविटी को हम अपने जीवन में अपनाएं। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। दैट फर्स्ट चैलेंज को हम अपने परमेश्वर के मन के द्वारा, उनके ऊपर मन लगाने के द्वारा हम इस पे जय पाएंगे। दूसरा जो है चैलेंज, ये पैंडेमिक हम सभी के मानव जीवन के अंदर लाया है, वो क्या है पता है? इट इज द आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि अकेलापन। क्या है अकेलापन? अगर आप लोग कहेंगे यू हैव टू बी इन आइसोलेशन, जो भी अगर कोविड-19 अगर सस्पेक्ट भी होता है, अगर उनको कोविड-19 हो जाता है तो उनको क्या करते हैं? अकेले रखते हैं। दे शुड नॉट गो एनीवेयर, आइसोलेशन में जाते हैं। नॉट ओनली दिस, ये इतना ही नहीं बल्कि पूरे आज परिवार के लोग, हम सारे लोग जो है कहीं ना कहीं आइसोलेशन में हैं। वी आर ऑल कंप्लीटली बाउंड इन वन रूम। हम एक रूम के अंदर जो है सब लोग अकेले हो चुके हैं। वी आर नॉट मीटिंग, हम जो है अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं। 1 साल के ऊपर हो गया, हम अपने परिवारों को नहीं देखे। कई बार हमारे दोस्तों से हम मिले नहीं हैं, हमारे ऑफिस के कलीग से हम कई बार नहीं मिले हैं, और हमारे कई जिनसे हम मिलना चाहते हैं उनसे हम मिले नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जीते समय पर हमें वी ऑल आर डिस्टेंट, हम एक दूसरे से जो है दूर होते जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग दिस? क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंस जो है लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है।
It is creating a gap between the people. Even though we are connected with the mobile, हम मोबाइल के द्वारा कनेक्ट होने के बावजूद भी जो है कई बार हम एक दूसरे से दूर हैं, और इसी वजह से आज हमारा सामाजिक जीवन, हमारे मन के ऊपर, हमारे आत्मिक चीज़ों के ऊपर ये जो है असर कर रही है. सो व्हाट वी टू डू, अभी हमें क्या करना है, अकेलेपन में कैसे हम रहेंगे, निराशा में कैसे रहेंगे. सो आज हमें यही बात करना है. यू हैव टू डू, आई सेड फर्स्ट रिफोकस योर माइंड. सेकेंड चैलेंज जो है इसको दूर करने के लिए यू हैव टू फोर्टिफाई वन अनदर. इंग्लिश वर्ड है फोर्टिफाई, FORTIFI, 45. इसका मतलब होता है स्क्रू अप, स्ट्रेंथनिंग, नेलिंग, या फिर बैरिकेड, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को बांधना, मजबूती देना. हिंदी में बहुत अच्छे शब्द है, मजबूती देना. सो ये समय है हम लोगों को क्या करना है. हम अकेले हैं, रूम में हैं, फैमिली में हैं, इधर उधर सब अकेले हो गए हैं, लेकिन यू नीड टू फोर्टिफाई वन अनदर. एक दूसरे को जो है हमें प्रोत्साहन देना है, मजबूती देना है. बहुत ही सुंदर एक कहानी मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप के अंदर. ये कहानी जो है सनफ्लावर्स, सूर्यमुखी फूल के बारे में मैंने पढ़ा. क्या है सनफ्लावर्स, क्या करती है पता है. ये सूर्यमुखी फूल जो है हमेशा जहां पर सूरज होता है उसी की तरफ वो मुंह रखती है. क्यों? क्योंकि वो लाइट को देखते हुए वो रोशनी पाते, उससे एनर्जी पाते. सूरज इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है. तो इस तरह से जीते हैं. लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब बादल छा जाते हैं, जब बारिश होती है, वो टाइम पर ये सूर्यमुखी के फूल क्या करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिए क्या है. इंटरेस्टिंग ये है कि वे ऐसे समय पर, बादल छाने के बाद, रेनी बारिशों के समय पर, ये फूल जो है एक दूसरे को फोकस करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और क्या करते हैं, दे शेयर देयर एनर्जी, वॉट एवर देयर एनर्जी इज देयर, वॉट एवर देयर स्ट्रेंथ इज देयर, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और उस तरह से खड़े रहते हैं, जीवित रहते हैं. व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी दैट वाज. बहुत ही सुनकर मेरे मन को जो है एकदम एक तरह से ताकत मिल गया, और कहा कि सच में आज इनसे हमें सीखना है. आज हम जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, ये सारी परिस्थिति के अंदर हो सकता है कि हम बादलों के नीचे से होकर गुजर रहे हैं, उदासी के रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन इन सारी स्थिति के अंदर आज मुझे उजाला देने वाला कौन है पता है. हो सकता है कि सूर्य, यानी कि वहां से हमें उजाला नहीं मिल रहा है, लेकिन आज मुझे एक दूसरे से उजाला देना है. आई नीड टू फोकस वन अनदर. एक दूसरे के ऊपर फोकस करते हुए उनसे एनर्जी मुझे देना है. वे टू सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना है. एम्पावर ईच अदर, एक दूसरे को जो है हमें बल देना है. और ये बात पौलुस बहुत अच्छी तरह जानते हुए उन्होंने अपने वचन में कहा है. पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय उसका 11 वचन, एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड अप ईच अदर. एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड अप ईच अदर. एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, एक दूसरे की उन्नति करो और बढ़ाते जाओ. फोर्टिफाइंग वन अनदर. पौलुस अपने जीवन में इस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण के तौर पर उन्होंने किया है. इन द पर्सनल विजिटेशन, वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को मिलकर उनको प्रोत्साहन दिया है. दैट इज नंबर 1. सेकेंड, जब पौलुस जो है लोगों से दूर था, दूसरे शहर में था सेवकाई के लिए, या फिर अगर जेल में था, तो उन्होंने क्या किया पता है, लोगों को प्रोत्साहन देना कम नहीं किया, रोका नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस समय पर उन्होंने पत्रों को लिखना प्रारंभ किया. He wrote the letters individually to the people, individually to the churches. कलीसियाओं को, उनके हर एक के नामों को लेकर उनको उत्तेजना देते हुए उनको पत्रिकाएं लिखी है. वही पत्रिकाएं आज हम पाते हैं हमारे बाइबल के अंदर है. तिमोथी है, फिलेमन है, टाइटस है ना, ऑल दिस, ओनेसिमस है. इन सारे लोगों को जो है पौलुस प्रोत्साहन दे रहा है. सो कैसे? बाय वर्ड्स, बाय दिस थिंग. सो टुडे, आज हम सभी लोग जो है, हो सकता है कि हम अकेले हैं. कई लोग अगर कोविड-19 से पीड़ित हुए हैं, जो बहुत ही निराशाओं में हैं, जॉब नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से जूझते समय अपने आप को मायूसी में पा रहे हैं. ऐसे लोगों को ढूंढकर आज हमें क्या करना है पता है, यू एंड आई नीड टू फोर्टिफाई हिम. कैसे? एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, एक छोटा सा कॉल कर ले, उनको प्रोत्साहन मिलेगा. एक छोटा सा, अगर आपको लगता है कि वीडियो कॉल करके उनको आसाना है, यू कैन डू सो. आज शब्दों के द्वारा आज हमें जो है उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है मेरे प्रियो. फिजिकली हो सकता है हम नहीं जा पाए, लेकिन आज शब्दों के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा
वचनों के द्वारा आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे के एनर्जी जो है, जो हम अकेले हैं करके सोचे नहीं, बल्कि उनको हम प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाए। गलातियों उसका 6वां अध्याय 2 वचन कहता है, bear one another's burdens so that you will fulfill the law of God। मतलब तुम एक दूसरे की बोझ को उठाओ जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो। आज बहुत सारे लोग अलग अलग बोझ में दबे हुए हैं, आज उनको हम मदद करें, आइए हम उनको सहायता करें। दिस इज़ अ टाइम, दिस इज़ अ चैलेंज दैट पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट। ये पैंडेमिक लेकर, लेकिन इस चुनौती को, इस चैलेंज को हम चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि नो वी विल नॉट, हम अपने आप को हार नहीं मानेंगे, बल्कि हम जय पाएंगे। द थर्ड थिंग, तीसरी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ये पैंडेमिक जो परिस्थिति आज हुई है ना, इस परिस्थिति से सभी लोग हार चुके हैं, सभी लोग मायूस हो चुके हैं। लेकिन आज मैं और आप मसीह होने के नाते, टुडे यू एंड आई बीइंग द बिलीवर, व्हाट आई हैव टू डू, ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज सुनिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है, टू बिकम द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड दिस पैंडेमिक। आर यू लिसनिंग? टू बी द मीडिएटर बिटवीन द पैंडेमिक एंड गॉड। आज जो पैंडेमिक जो परिस्थिति हुई है, कोविड-19 ने पूरे हल्ला मचा चुकी है, इसके बीच और परमेश्वर के बीच आज मुझे और तुम्हें जो है मीडिएटर बनकर खड़ा होना है। मीडिएटर क्या करता है? मध्यस्थी की करता है, ब्रिजिंग करता है, जो गैप जो दूर हो चुका है, गैप बढ़ चुका है, उस गैप को पूरा करना, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग द पीपल टू ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन। लोगों को मदद करना है ये करने के लिए। यू नो व्हाट हैपेंड, बेस्ट एग्जांपल्स वी हैव सीन इन द बाइबल में हम देखे हैं, सोदम और गोमरा शहर को जब परमेश्वर नाश करने के लिए ठान लिया था, तब एक व्यक्ति वहां पर मध्यस्थी किया, मीडिएटर किया। कौन है वो? अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, लॉर्ड अगर 50 लोग होंगे तो आप उन्हें नाश नहीं करेंगे, धर्मी लोग होंगे, 40, 30, 10, 5, लेकिन अंत में देखते हैं कि 5 भी वहां पर धर्मी नहीं थे, लेकिन वहां पर उनको नाश किया। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज Abraham is a mediator. Not only that, second example I'll give you, Moses, कई बार इजरायली जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद उनको मारने वाला था, नाश करने वाला था, लेकिन मूसा बार बार आकर मध्यस्थी के करते हुए परमेश्वर से कहा कि इन्हें क्षमा कर, तो इन्हें क्षमा कर, तो आओ तेरी दया, तेरी करुणा तो उनके ऊपर समर्पित कर। जिस वजह से इजरायलियों को परमेश्वर जो है बचाता गया, आगे बढ़ाता गया। टुडे you and I need to mediate for the people for this pandemic situation। आज मुझे और आपको जो है मध्यस्थी की करना है। क्या है मध्यस्थी की, किस बारे में करना है? praying for this people, praying for the pandemic। आज हम लोग चेन प्रेयर ऑर्गेनाइज किए हैं, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट आई प्रेज गॉड फॉर ऑल ऑफ देम। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो लोग घुटने पर आकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस पैंडेमिक स्थिति के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारे भेजे हुए रिक्वेस्ट के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग जो है आज मध्य रात्रि में विजिल प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर्स कर रहे हैं। ये सारी क्या बात को बताते हैं? वी आर मीडिएटिंग फॉर द पीपल। लोगों के लिए आज हम मीडिएट कर रहे हैं। यू नो व्हाट वी आर टू मीडिएट? लोगों की पापों की क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करना है, और हीलिंग द लैंड, हमारे देश को, हमारे इस पृथ्वी को जो है परमेश्वर चंगाई दे, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। नहमाया के बारे में हमने सुना है। नहमाया जब यरूशलेम शहर के बारे में, शहर पना जब टूट चुके करके पता चला, सबसे पहले उन्होंने क्या किया पता है? ही केम डाउन ऑन हिज नीज। वो मन से घुटने पर आकर अपने ऊपर राख डालकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में क्या किया पता है? कहा कि हमारे यरूशलेम शहर के लोगों ने जो भी अगर आपके विरुद्ध पाप किए तो उन्हें क्षमा कर लॉर्ड, तो उन्हें क्षमा कर। ऑन देयर बिहाफ आई आस्क योर फॉरगिवनेस। मैं उनके बिहाफ में आपके सम्मुख में प्रार्थना करता हूँ कहकर उन्होंने कहा। जब उन्होंने ये कहा तब परमेश्वर जो है वहाँ पर एक नया रास्ता उनको देता है, और नहमाया जाकर उस शहर पना को फिर से बना लेता है। मेरे प्रिय लोगों, आज ये मध्यस्थी की प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है। लेट अस टेक दिस टाइम एंड मीडिएट फॉर माई पीपल। मेरे लोगों के लिए मैं मध्यस्थी की करूं। दूसरा और एक काम है मैं मध्यस्थी करना, मतलब खाली प्रार्थना ही नहीं करना है। दूसरा जो है हेल्पिंग हैंड टू द नीडी। जो लोग जरूरतमंद है उनके लिए आज हम सहायता के लिए हाथ बढ़ाए, हमारे हाथों को बढ़ाए। प्रिय लोगों, छोटा सा मदद जो है आज लोगों के लिए बहुत बड़ा मदद हो सकता है। मैं जानता हूँ कैसे बहुत सारे लोगों ने गवाही दी है कि
उनके लिए एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये दिए, लेकिन उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए वो 1,000 रुपये उनके लिए 10,000 के बराबर था, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। कई लोगों ने जो है राशन लेकर अपने पास आधा रखकर दूसरों को आधा दिए हैं। मैंने ये भी सुना है कि कई लोग अपने पास कम रखकर दूसरों को उन्होंने बांट दिया है। अपने लिए लिए लेकिन वापस से वो दूसरों को उन्होंने दिया करके देखे हैं। मदर टेरेसा एक छोटी सी कहानी बता रही हैं अपने बच्चों के बारे में। एक बार वो इसी तरह से खाना बांटते हैं, पैंडेमिक सिचुएशन की नहीं बल्कि पहले की बात है। तो एक बार इसी तरह से गरीबों के बीच में बच्चों को खाना देते समय सब बच्चे आकर ले रहे थे खाना का पैकेट, कि बच्चे को भी दे दे। बच्चे ने कहा कि मुझे और एक पैकेट दे दो। जब उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको और एक पैकेट दिया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा जो है चुपके से इनके पीछे पीछे जाती है, लड़की के पीछे। क्या करेगी देखते हैं। जब जाती है, प्रिय लोगों, मदर टेरेसा बहुत ही दहक जाती है। क्या होता है पता है, 3 पैकेट जो ली रहती है वो साथ में बच्ची जाकर उसमें से 2 पैकेट जो है उनके बाजू में जो पड़ोस में जो रहने वाले हैं मुस्लिम परिवार थे उनको उन्होंने दिया, और ये हिंदू परिवार, और इन्होंने 1 पैकेट उन्होंने रखा। मदर टेरेसा जाकर उनको पूछती है कि बेटा तूने 1 पैकेट क्यों रखा और उनको क्यों 2 दिया। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम कल तो खाना खाए हैं, लेकिन उन्होंने कल भी खाना नहीं खाया, आज भी नहीं खाना खाया, इसीलिए मैंने 2 पैकेट उनको दिए हैं। फिर लोगों, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। केवल खाने के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मदद की ज़रूरत है जिनको चाहिए। आज अगर मेरे पास है तो आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं और उनके लिए दें। और इस चैलेंज को, जो पैंडेमिक हमारे बीच में इस परिस्थिति को लाया है, आर्थिक परिस्थिति, खाना नहीं है, सब परिस्थितियों को लाया, इस परिस्थिति के ऊपर जय पाना है, मैं और आप जो है मीडिएट करते हुए हमें करना है। क्या हम करने तैयार हैं? आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके सम्मुख में आएंगे और कहेंगे कि लॉर्ड, ये पैंडेमिक कितने ही चैलेंजेस हमारे सामने लाए, लेकिन हम इन चैलेंजेस को प्रभु, हम तेरे ऊपर विश्वास रखने के द्वारा, मैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के द्वारा, प्रभु हम मध्यस्थी करने के द्वारा इस चैलेंजेस को हम तोड़ेंगे और जय का जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಕಟಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಬೋಧಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು। ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ದಿವಸ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। अनाउंसमेंट्स, हमारी संडे की सर्विस जो है इसी तरह से 11 बजे चलाई जाएगी, और बुधवार की आराधना 8 बजे फेसबुक लाइव पर चलाई जाएगी। और हमारी बाकी सभी चीज़ें जो है अभी तक कुछ एक्टिविटीज़ हम चालू नहीं कर रहे हैं, जैसे चालू होगा मैं आपको बताऊंगा। और हमारे ईस्टर संडे की कलेक्शंस जो है हमने अनाउंसमेंट नहीं किया था, उसको हम करते हैं। ईस्टर संडे कलेक्शन 34,263 वर्शिप कलेक्शन, और एरिया से जो आया है उग्राणिक के नामों को पढ़ते हुए उनके काणिके को मैं पढ़ता हूँ। यीशु भास्कर के एरिया से और एरिया कಡೆಯಿಂದ ಉಗ್ರಾಣಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ 39,180 ರೂಪಾಯಿ। ಐಸಕ್ ಗುಣವಂತ್ 24,267 ರೂಪಾಯಿ। ಜ್ಞಾನ್ ಮಿತ್ರ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 31,972 ರೂಪಾಯಿ। ಸಾಮೇಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವರ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ 36,080 ರೂಪಾಯಿ। ನಾಗೇಶ್ ನಡುಲ್ಕೆರಿ ಇವರ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ 54,000
200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು 1,85,699 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರತ್ನಪ್ಪ ಕೊಂಡೈನೂರ್ ಎಲೇರಿ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ದೇವದಾಸ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಎಲೇರಿ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ರೀತು ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 14 ಮೇ 2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 3ನೇ ಸಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಮಯ್ಯನವರ್ ತೊಟ್ಲೂರ್ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸಿಂಗಾರಪ್ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 12 ಮೇ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಸಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿದೆಯಾದರೆ ನೀವು ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. देव नम्मेल्लरನ್ನು आशीर्वदिसली। प्रभु हम सभी को आशीष दे और विशेष तौर से इस पैंडेमिक परिस्थिति के अंदर आइए हम सभी लोग जय पाए इसके ऊपर। प्रभु हम सभी को मदद करे और जो जो हमें करना है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर एक बार मैं सारे माओं को, फॉर ऑल द मदर्स, आई विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को माँ दिवस ತಾಯಿಯ ದಿವಸವನ್ನು ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಜೇಮ್ಸೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12th ಮೇಗೆ ನರ್ಸಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನರ್ಸಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಜೇಮ್ಸಯ್ಯ, ನಿರ್ಮಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದೆ. ದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಂದರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಹಾರೋಗದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ ब्लेस्ड डे. और फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद. आप लोगों ने हमारे मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपने विशेष भेजे हैं. सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन.